So let's start with the numericals of sound. In the chapter we have two important formulas. We'll be using both the formulas for the different sums. So the first is frequency is 1 upon time, or you can use it like this also, time is 1 upon frequency. both ways are important. Now, before starting the numericals, we need to revise a few concepts from sound. What is loudness? You have studied sound, right? You have studied for the test. What is loudness? High pitch. No. Pitch and loudness are two different characteristics. There are three characteristics of sound, right? What are the three characteristics? Hertz is the unit of sound. It is the unit of frequency. Loudness. Pitch. No, not frequency. Quality. So the three characteristics of the sound are loudness, pitch, and the quality. Okay. So loudness means how faint or how loud a sound appears to a listener, and it depends upon the amplitude. Now, what is amplitude? What is amplitude? Amplitude is the wavelength. No. If this is a wave of the sound. Just a second. So if this is a wave, the amplitude is the maximum displacement of the wave on either side of the axis. On either side मतलब ऊपर और नीचे. तो ये होता है amplitude. ये दोनों same होता है, ठीक है? यहाँ पे थोड़ा ये बड़ा बन गया है, but these both are same. Okay. This is for example if the movement here is up to 5 meters. If I draw a line like this, and let's say this is 5 meters, तो नीचे भी कितना होगा? Minus 5 meters. Write it as minus 5 meters. Okay. So on either side, this is called as the amplitude. अब ये जितना ज़्यादा होगा ये उतना loudness ज़्यादा होगा. Okay. So amplitude affects the loudness of a sound. And what is the relation between them? Loudness is directly proportional. See, this sign is proportionality sign. Okay. Directly proportional to a square means amplitude square. Directly proportional का मतलब क्या है? Means directly proportional means see, directly proportional means अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी भी इंक्रीज होगी, उसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके. मींस अगर एम्पलीट्यूड इंक्रीज हुआ, एम्पलीट्यूड अगर इंक्रीज हो रहा है तो लाउडनेस भी इंक्रीज होगा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज हुआ तो लाउडनेस भी डिक्रीज होगा. ठीक है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का उल्टा होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. उसमें उल्टा रिलेशन होगा, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी. फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस. इफ द डिस्टेंस इंक्रीजेज द लाउडनेस विल डिक्रीज. जितना दूर आप जाओगे सोर्स से, साउंड के सोर्स से आप जितना दूर जाओगे उतना कम सुनाई देगा. ओके. तो डिस्टेंस इंक्रीज, लाउडनेस डिक्रीज. सो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. ओके. यहाँ पे दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड. ओके. सो लाउडनेस इज एम्पलीट्यूड स्क्वायर. अब लाउडनेस हैज नो रिलेशन विथ पिच ऑफ द साउंड. पिच एक अलग चीज़ है, लाउडनेस एक अलग चीज़ है. ठीक है. पिच का मतलब क्या है? यस, व्हाट इज पिच? लो और हाई वाइज. ठीक है. पिच लो या हाई होती है. ओके. और कुछ? यस. पढ़ा है आप लोगों ने चैप्टर का? नहीं पढ़ा था तो सब गया. कौन से दे रहा है? पिच क्या? आप बोल. It is characteristic of sound, low or high. Pitch जाता है तो sound भी जाता है. पिच जाता है तो साउंड भी जाता है. ओके.
पिच किस पे डिपेंड होता है? Frequency. फ्रीक्वेंसी. ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. पिच डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी. ओके, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? Number of waves Number of waves per second. per second. Yeah. Number of waves in 1 second is called as frequency. This is correct. Okay, number of waves 1 second मतलब समझो मैं यहाँ पे 3 waves बनाता हूँ to make you understand what is pitch. So ये एक wave है. सबसे हाई पिच थर्ड वाले की. So इसमें मैंने क्या किया है? मैंने 3 waves बनाई है. ठीक है? इन तीनों की frequency अलग है. ठीक है? Frequency मतलब समझो ये जो टाइम यहाँ पे है इधर से लेके इधर तक, दिस टाइम इज 1 सेकेंड लेट्स से. ओके, सो जो फर्स्ट वेव है 1 सेकेंड में एक वेव आई है. ओके, दिस इज कॉल्ड एज क्रेस्ट, दिस इज कॉल्ड एज ट्रो. जो अपर मोस्ट पॉइंट और लोअर मोस्ट पॉइंट, क्रेस्ट एंड ट्रो. ओके, सो ट्रो, TROUGH, ट्रो. ओके, सो ये 1 सेकेंड में एक वेव आई है यहाँ पे. ये वाली 1 सेकेंड में 1 2 3, so this is 3 waves in 1 second. This is 1 wave in 1 second. And what about this? 1 2 3 4 5 6 7, 7 waves in 1 second. Okay, so this wave, the frequency of this wave is 1 hertz. The frequency of this wave is 3 hertz and the frequency of this wave is 7 hertz. तो आप समझ में आता है जब कभी आप क्वेश्चन में बोलते हैं कि 20 हर्ट्ज, 30 हर्ट्ज, 40 हर्ट्ज, उसका मतलब क्या है? 20 वेव्स आई है 1 सेकेंड. ओके, 20 वेव्स या 30 वेव्स या 1000 हर्ट्ज या 5000 हर्ट्ज भी होता है, 10,000 हर्ट्ज भी होता है. ठीक है, तो दैट इज दैट नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड. ओके, ह्यूमन ऑडिबिलिटी रेंज क्या है? 20 to 20,000. 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज इज द रेंज. 20 hertz to 20,000 hertz is the range of frequency we can hear. Okay, now there is one important thing you need to understand. इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा ज़ोर से आने वाली आवाज़ है और ये बहुत ज़्यादा स्लो आने वाली आवाज़ है. नहीं, दिस इज फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि जो ये वाली वेव है इन दोनों का लाउडनेस सेम हो सकता है, दोनों सेम वॉल्यूम पे आएगी, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी वेव ऐसी दिखेगी कुछ, और ये जो है इसकी वेव ऐसी दिखेगी. कैन यू इमेजिन? बहुत हाई फ्रीक्वेंसी है ना, बहुत ऑलमोस्ट एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक हो जाएंगे. ओके, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी. सो आप फर्क समझ रहे हो? बोथ द वेव्स, इफ यू सी देयर एम्पलीट्यूड, समझो तो दिस इज 1 मीटर, और इस वेव की एम्पलीट्यूड भी देखोगे तो दिस इज ऑल्सो 1 मीटर. एम्पलीट्यूड दोनों का सेम है, मतलब लाउडनेस दोनों का सेम होगा. जितनी ज़ोर से आवाज़ आने वाली है स्पीकर में से या किसी भी सोर्स में से वो सेम होगी, लेकिन साउंड का टाइप अलग होगा. तो ये साउंड होगा, दिस विल बी अ लो पिच साउंड. ओके, एंड दिस विल बी अ हाई पिच साउंड. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ लो पिच साउंड एंड अ हाई पिच साउंड? जैसे जो आवाज़ मेल वॉइस जो होती है दैट इज अ लो पिच साउंड. ड्रम्स से जो आवाज़ आती है, ड्रम्स से, दैट इज अ लो पिच साउंड. बट ऑन द अदर हैंड जो फीमेल वॉइस होती है या फ्लूट से जो आवाज़ आती है, फ्लूट से शार्प साउंड जो होता है, ऑल दोज आर हाई पिच साउंड. ओके, ऑल दोज आर हाई पिच साउंड. सो नाउ यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन लाउडनेस एंड पिच. दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक है साउंड का. ठीक है, साउंड की टाइप भी इंपॉर्टेंट है कि वो कौन से फ्रीक्वेंसी का है, और प्लस साउंड का लाउडनेस भी इंपॉर्टेंट है. दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड द थर्ड वन इज द क्वालिटी, जो न्यूमेरिकल्स में तो यूज नहीं होने वाला, बट क्वालिटी यू अंडरस्टैंड दैट द टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट यू यूज टू रिप्रोड्यूस योर साउंड विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन द क्वालिटी ऑफ साउंड. ओके, इफ़ यू, जैसे क्या होता है कि हम जो भी साउंड रिकॉर्ड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर रिकॉर्डिंग अ सॉन्ग, ओके, सो इन दैट सॉन्ग देर आर hundreds of different notes, small notes. Okay, and also they may have used 5-7 different instruments in recording that music. उन्होंने गिटार यूज़ किया होगा, पियानो यूज़ किया होगा, ड्रम यूज़ किया होगा, जो
एक्चुअल में सिंगर है, उसके वोकल्स होंगे, बहुत सारे अलग अलग टाइप के साउंड्स, वो सब रिकॉर्ड हो रहे हैं। ओके, समझो वो सॉन्ग किसी पानी के पास शूट हो रहा है तो वहाँ की आवाज़ आएगी, सब उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। ओके, एंड ऑल दोज फाइन डिटेल्स नीड टू बी रिप्रोड्यूस्ड बाय द स्पीकर। ओके, अगर आपके स्पीकर की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है, आपने कोई तो चालू स्पीकर यूज़ किया है, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो साउंड है वो एकदम ब्लेंड होके आएगा, मतलब एकदम पेल साउंड होगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या डिफरेंस है ड्रम्स का या पियानो का या गिटार का, सब एकदम नॉर्मल आएगा, सिर्फ आवाज़ सुनने में आ जाएगी बस। ओके, लेकिन वही आप अगर किसी क्वालिटी स्पीकर में सुनोगे तो आपको सारे आवाज़ पता चलेंगे। ओके, इसीलिए जो हमारा समझो टीवी का जो एक्सपीरियंस होता है और जो थिएटर में एक्सपीरियंस होता है वो अलग होता है, बिकॉज उनके पास उतने हाई टेक और ऑडियो डिवाइसेस होते हैं जिससे ज़्यादा अच्छे से आवाज़ आती है। ठीक है, घर में हमारे टेलीविजन में 2 छोटे स्पीकर्स होते हैं, वो कितना आवाज़ रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसे, सो दैट इज़ क्वालिटी। Okay, so once we know this, now we can do the numericals, and you also know the unit. So for the frequency, the unit of frequency is hertz. The unit of time is seconds. Time, SI unit of time is seconds. Come to page number 133. There are 2 solved examples also. We'll do those also. The first solved example, page 133, it says 2 waves A and B are of amplitude 3 centimeter and 4 centimeter. Compare their loudness. Which sound is louder? So उन्होंने 2 एम्पलीट्यूड हमें दिए हैं, 2 एम्पलीट्यूड, और वो 2 एम्पलीट्यूड से हमें लाउडनेस को कंपेयर करना है। सी कंपेयर वर्ड अगर कभी भी आएगा क्वेश्चन में, कंपेयर, तो आपको रेशो फाइंड करना होता है। कंपेयर मीन्स रेशो। ओके, तो यहाँ पे They want us to compare the loudness of A to the loudness of B. There are 2 sounds. now what is the formula? How is loudness connected to amplitude? Loudness is directly proportional to amplitude square, amplitude का square। तो इसका मतलब This loudness of A will be equal to amplitude of A square upon loudness of B will be equal to amplitude of B the whole square. ये A का लाउडनेस को कंपेयर कर रहे हैं B के लाउडनेस के साथ, मतलब उनका रेशियो फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज द वैल्यू गिवन टू अस? A का एम्पलीट्यूड कितना दिया है? 3 सेंटीमीटर। So this will be 3 square and B amplitude is 4 square. That is 4 square. So answer will be 9/16. So the ratio is 9/16. Now the loudness of A upon loudness of B का हमें ratio मिल गया. Which sound is louder? B. So in the end you will write that the sound B is louder than A. Copy this. Done?
Now read the second solved example. Two sources of sound A and B are of frequencies 120 Hz and 256 Hz. Which sound is of higher pitch? तो ये तो oral question है. A और B. हायर पिच मतलब ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, जिसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी वो हायर पिच होगा. तो द साउंड B हैज़ फ्रीक्वेंसी 256 Hz, so it will be of higher pitch. Okay. Then they are asking me, to a listener, how do the two sounds differ? So in the answer they have given, to a listener the sound A will be grave while the sound B will be shrill. Grave और shrill का मतलब क्या है? जो डिफरेंस मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ साउंड का. While doing the chapter also, I think I made you listen to the sound. ऐसा कुछ सुनाया था? याद है? देखो मैं आपको एक साउंड सुनाता हूँ. सेवेंटी हर्ट्स में कुछ सुनाई नहीं दे रहा. 180 हर्ट्स. कैन यू लिसन समथिंग? कुछ आवाज़ आ रही है? कैन यू लिसन टू द साउंड? अब फ्रीक्वेंसी है 420 हर्ट्स. फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीजिंग. सीधा ट्रांजिशन. पहले कितना ग्रेव साउंड था, मतलब कितना लो पिच था. अब धीरे धीरे साउंड शार्प होते जा रहा है. वॉल्यूम मेरे फ़ोन की उतनी ही है, मैंने लाउडनेस को चेंज नहीं किया है, वॉल्यूम को चेंज नहीं किया. वॉल्यूम इज सेम. सी द साउंड विल चेंज एज द फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस. अब ये हाई पिच हो रहा है और थोड़ा आगे जाएंगे तो इरिटेट होने लगेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई पिच हो जाएगा. This is 1500 Hz. This is 1500 Hz. We can listen to the sound up till 20,000 Hz. Okay, 20,000. But सब ह्यूमन बींग्स के लिए अलग अलग होता है थोड़ा सा. मतलब उन्होंने एक मैक्सिमम रेंज दे दी है 20 Hz to 20,000 Hz. अगर आप 20 Hz का साउंड सुनोगे तो आपको नहीं सुनने में आएगा, बिकॉज वो एकदम मिनिमम वाली रेंज है. तो इसलिए एक नॉर्मल रेंज की अगर बात करें तो नहीं. सी आप मैं यही चीज़ एक्सप्लेन कर रहा था कि 20,000 हर्ट्ज का मतलब क्या होगा पता है? मैं अभी बताऊंगा ये वीडियो के साथ. साउंड शार्प होते जाएगा. सी 20 हर्ट्ज का साउंड हम नहीं सुन पाते, ऑलमोस्ट नहीं सुन पाते, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ही ग्रेव होता है. तो वी कैन नॉट हियर. ओके, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस वी कैन हियर टू द साउंड. बाद में जैसे जैसे और ऊपर जाएंगे साउंड शार्प होते जाएगा. फिर वो इतना शार्प हो जाएगा कि आप नहीं सुन पाओगे उसे. वो इतना शार्प हो जाएगा साउंड. ठीक है, तो 20,000 हर्ट्ज वाला साउंड भी आप नहीं सुन सकते एंड 20 हर्ट्ज वाला भी नहीं. उसके बीच में आपका रेंज है. ओके, आपको समझेगा. अभी देखो, दिस इज 2000 हर्ट्ज. देखो सर, टेंशन में आ गया. मैं थोड़ा वॉल्यूम कम करता हूँ. दिस इज 3000 हर्ट्ज. See the wave. This is the wave. एकदम. अब देखो वापस साउंड अभी भी उतना ही है, लेकिन देखो अभी इरिटेट हो रहा है और अभी साउंड देखो शार्प होते जा रहा है. लाउडनेस कम हो रही है. ठीक है, अभी नहीं सुनाई दे रहा है, कम होते गया. अभी कितना, ये 10,000 हर्ट्ज है. अजीब साउंड आ रहा है देखो, एकदम शार्प. अब कम होते जाएगा. दिस इज 15,000 हर्ट्ज. 16,000, 17,000 चालू है अभी भी. अब हमें नहीं सुनाई दे रहा. समझ रहे हो? सो अराउंड 15,000 हर्ट्ज तक यू आर एबल टू लिसन द साउंड. ओके, उसके बाद वो धीरे धीरे इतना शार्प हो गया कि इट इज बियॉन्ड आर ऑडिबल कैपेबिलिटीज. ओके, फ्यू एनिमल्स आर देयर, few other species who can hear the sound even beyond this range of 20 Hz to 20 kHz. Okay, ठीक है. So this is done. The second solved example is self-explanatory. No need to copy.
See the third one, page 134. They are given two graphs, two waves, and they are asking me that which sound is louder, give reason. So दोनों waves को देखो, which sound appears to be louder? Second, why? B, why? एम्पलीट्यूड इज हाई. ठीक है, अगर आप एम्पलीट्यूड देखोगे तो ऊपर वाले का कम है, नीचे वाले का ज्यादा है. तो अगर एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो लाउडनेस विल बी मोर. ओके. सेकंड सब क्वेश्चन, व्हिच साउंड इज श्रिलर? ओके, श्रिलर मींस हाई पिच. ओके, सो ए बिकॉज द फ्रीक्वेंसी इज हाई, और बी क्यों ए? कितनी फ्रीक्वेंसी है ए की? 3 फ्रीक्वेंसी है. ओके, मतलब 3 वेव्स आ रही है, और उस सेम टाइम पीरियड में जो नीचे की वेव है उसमें 2 ही वेव्स आ रही है. ओके, 2 ही वेव्स आ रही है. सो द फर्स्ट साउंड इज श्रिलर. ओके, टर्न द पेज. Numericals from the exercise. The first question, two waves of same pitch. So they are saying the waves have same pitch. दो waves है. Let's say the two waves are A and D. ये दो waves हैं A and D, and they have same pitch. Have amplitudes in the ratio 1:3. So उन दोनों waves की amplitude का ratio है 1:3. Okay. What will be the ratio of their loudness? तो उनके waves के loudness का ratio क्या होगा? वेव्स के एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या दिया है? 1:3 दिया है. ओके, बट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, जो भी एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर होगा. सो आई विल हैव टू टेक स्क्वायर ऑफ दिस, होल स्क्वायर भी लिख सकते हो. सो दिस विल बिकम 1/9. सो द रेशियो ऑफ देयर एम्पलीट्यूड्स विल बी 1:9. ओके, एंड द सेकंड पार्ट इज, ये भी सुन लो, ये बहुत सिंपल है. क्या दिया सेकंड पार्ट में? द रेशियो ऑफ देयर पिच. सेम. सी, उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला था पिच तो दोनों का सेम है. अगर दोनों का सेम पिच है तो रेशियो क्या आएगा? रेशियो कुछ होगा ही नहीं. ऊपर नीचे अगर सेम क्वांटिटीज है तो द रेशियो विल कैंसिल एंड यू विल गेट 1:1. ओके, सो राइट हियर द वेव्स हैव सेम पिच. Therefore second. Two waves have frequencies 256 Hz and
5 and 2 hertz. Let's say दो waves हैं A and B, and they have frequency 256 hertz and 5 and 2 hertz. but same amplitude. They have same amplitude. So the loudness will be also same. We have to compare their loudness. So first part में we have to compare the loudness. Loudness depends upon the amplitude. अगर amplitude दोनों waves का same है तो loudness will also be same. Okay, so directly write the statement. The amplitude of the given waves are same. Therefore, loudness will have the ratio 1:1. Second is to compare the pitch. Now, pitch is directly proportional to frequency. जितना पिच होगा, जितनी फ्रीक्वेंसी होगी उतना पिच होगा. अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी हाई होगा, फ्रीक्वेंसी कम है तो पिच विल बी लो. ओके, so the question is compare the pitch of the two sounds. So, pitch of A upon pitch of B. Pitch will depend upon the frequency. So, this will be equal to frequency of A upon Frequency of B. what is the frequency of A? 256 and frequency of B is 5 and 2. So your answer will be 1:2. Done? Come to electricity chapter. Let's write down all the formulas which will be useful here. W stands for what? Okay. What does W stands for here? What does V stands for? Not in maths. Electricity learn नहीं किया ना? V stands for Voltage. I stands for, ये बेसिक आना चाहिए. I stands for current, T stands for
टी तो आना चाहिए. इलेक्ट्रिसिटी टाइम टाइम. T stands for time. Okay. W stands for work. Okay. Watt भी होता है but वो यूनिट में होता है. Unit of power is watt. Okay. So this formula is important. Then second, P is equal to V into I. So here P is power, and the unit of power is watt. वोल्टेज Watt. Power का यूनिट होता है watt. वर्क का यूनिट होता है जूल. There is one more formula for power. Power equals work upon time. Sir, what does I stands for? करेक्ट Correct. सर वो here also P stands for power only. पावर के ही ये दो formulas हैं, ठीक है. Now this formula can also be written as, if I multiply this t, if I multiply it here, So this will become P into T equals W. means the same. Yes. Okay. So ये ऐसा भी यूज हो सकता है, ऐसा भी यूज होता है, depending upon what you are finding. Okay. P into T equals W. Sir, time का कोई formula नहीं है. किसका? Time. इसी से टाइम भी मिल जाएगा अगर ढूंढना होगा तो. पावर दे देंगे, वर्क दे देंगे तो आपको टाइम मिलेगा. Okay, so this is all. Just leave a few lines after these formulas so that अगर कुछ add करना हो important point या note, so we can add it later. Okay, let's do the solved examples first. Page number 148. Solved examples. ठीक है. What is potential difference? Potential difference means nothing but voltage. Potential difference and voltage are same. Interchangeably उनको use करते हैं. ठीक है. Potential difference and voltage दोनों का मतलब same होता है. So the question is, from a battery of potential difference 12 volt. Potential difference 12 volt मतलब voltage है 12 volt. जो वोल्टेज होता है उसका यूनिट भी V से डिनोट होता है. Symbol is also V. Unit is also V. Okay. So potential difference V is 12 volts. Current is 2 amperes. Current means I. I is 2 amperes. This is the given data. Flows through a wire for 30 minutes. So their set time is 30 minutes. Okay. Now we have to find the energy. See, now the time in these sums, the time will be either given in minutes or in hours. ठीक है. तो अभी टाइम का SI यूनिट होता है सेकेंड्स.
ओके, तो मोस्ट ऑफ द सम्स में यू विल कन्वर्ट टाइम इनटू सेकंड्स। लेकिन जो ऐसे सम्स होते हैं जहाँ पे आप कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले हो, समझो आप क्वेश्चन ऐसा है कि एक फैन 4 दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट। ओके, सो इन दैट केस वेर यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट, इन दैट केस यू विल नॉट कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड्स, क्योंकि जब हम कॉस्ट काउंट करते हैं किसी भी अप्लायंस का, किसी के घर का, फॉर एग्जांपल हमारे घर पे कितना लाइट का बिल आता है, वो आर्ली बेसिस पे कैलकुलेट होता है। आपका एक अप्लायंस है, उसने 4 दिन में, लेट्स से एवरी डे इट वाज बीन रनिंग फॉर 4 आवर्स, लेट्स से योर एयर कंडीशनर, ठीक है, आपके एयर कंडीशनर आपने पूरे महीने में 30 डेज में एवरी डे यूज़ किया, और एवरी डे आपने 4 आवर्स के लिए उसे यूज़ किया, तो जो भी कॉस्ट होगा वो इसके नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई होगा। ओके, जो भी पर यूनिट कॉस्ट होता है वो इसके नंबर ऑफ आवर्स से मल्टीप्लाई होता है। सो इन दैट केस यू विल नॉट कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड्स, उसको आवर्स में रहने देंगे, वो आपको समझ जाएगा क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। सर अगर कन्वर्ट कर दिया तो आंसर रॉन्ग आएगा? नहीं, तो क्या होता है बताइए, यूनिट चेंज हो जाते हैं। यूनिट जैसे जो एनर्जी होता है, हम एनर्जी कैलकुलेट करते हैं कभी भी, सी वी कैलकुलेट द एनर्जी, ओके, एनर्जी एंड वर्क आर सेम, रिमेंबर दिस, एनर्जी एंड वर्क आर सेम। ओके, अभी हमने फॉर्मूला देखा था एक, पावर इज W अपॉन T, ठीक है, तो मैं T को यहाँ पे लेके गया था, तो मुझे क्या मिला था, P इंटू T इज W। ओके, W इज नथिंग बट वर्क, मीन्स इट इज नथिंग बट एनर्जी। ओके, सो एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, पावर इंटू टाइम। फॉर्मूला क्या है एनर्जी फाइंड करने का, पावर इंटू टाइम। ओके, सो अगर मुझे एनर्जी फाइंड करना है तो मैं पावर इंटू टाइम करूंगा। ओके, लेकिन अगर मैंने टाइम को सेकंड्स में रखा, समझो यहाँ पे 20 वॉट है, ओके, और मैंने टाइम को सेकंड्स में रखा, लेट्स से इट इज 3000, जो यहाँ पे क्वेश्चन में टाइम है, इट इज 3600 सेकेंड्स। 3600 सेकेंड मीन्स 1 आवर होता है। ओके, 3600 सेकेंड्स का मतलब 1 आवर होता है। सो एंड द पावर इज गिवन एज 20 वॉट। लेट्स से ये क्वेश्चन ऐसा, ठीक है, तो इस केस में पावर इंटू टी, पी इंटू टी, इफ आई कीप द टाइम इन सेकेंड्स, तो मुझे आंसर क्या आएगा, 72,000 आंसर आएगा, बिकॉज टाइम कितना है, 3600 है, तो कन्वर्ट तो नहीं होगा, 20 into 3600, 72,000, आंसर विल बी इन जूल्स। जब आप टाइम को कन्वर्ट नहीं करते, जब आप टाइम को सेकेंड्स में ही रहने देंगे, तो जो आपको यूनिट मिलता है वो होता है जूल्स। ओके, लेकिन अगर आपने टाइम को कन्वर्ट किया, ओके, तो टाइम समझो आवर्स में आपने लिया, ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, पावर इज 20 वॉट इंटू टाइम इज 1 आवर। ओके, तो आपका आंसर क्या आएगा, 20 इंटू 1 इज 20, ओके, वॉट और आर, ये भी दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यूनिट है ये, तो दिस बिकम्स वॉट आर। तो ये यूनिट होता है एनर्जी का, व्हेन यू डू नॉट कन्वर्ट द टाइम इनटू सेकंड्स, व्हेन यू कीप इट इन आवर्स, तो जो उसका यूनिट बनता है वो भी ऐसा ही बनता है, वॉट आवर्स। ओके, तो हमारे घर पे हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं वो किलो वॉट आवर्स में काउंट होता है। ओके, किलो वॉट आवर्स मतलब, हाँ, मतलब 1000 वॉट्स इज नथिंग बट 1 किलो वॉट। 1000 किलो वॉट आवर इज 1 किलो वॉट आवर। ओके, तो 1000 तो होता ही है मिनिमम सबका, तो इसलिए उन्होंने 1000 वॉट आवर को 1 किलो वॉट आवर में कन्वर्ट कर दिया, और बेस्ड ऑन दिस 1 किलो वॉट आवर दे विल चार्ज यू। ओके, तो आपने कितने टाइम यूज किया है वो आप, तो जो रेट भी डिसाइड होता है, ठीक है, जैसे कोई कंपनी है, इफ इट इज चार्जिंग 5 रुपीज पर यूनिट, पता है आपने कितने यूनिट्स इलेक्ट्रिसिटी यूज किया, यूनिट्स पे काउंट होता है वो, दैट यूनिट इज नथिंग बट 1 किलो वॉट आवर। ओके, वो जो एक यूनिट बोलते हैं ना पर यूनिट, दैट इज 1 किलो वॉट आवर। ओके, तो समझो आपने पूरे मंथ में 200 किलो वॉट आवर यूज किया, 200, सो योर बिल विल बी 200 इंटू 5, 1000 रुपीज का बिल आएगा आपके घर पे वैसे। ओके, ठीक है, सो ये बात समझ में आई। टाइम अगर सेकेंड्स में है तो द यूनिट विल बी इन जूल्स, टाइम अगर आवर्स में है तो यूनिट विल बी इन वॉट आवर्स। ओके, व्हाइल डूइंग द सम आई अगेन रिमाइंड यू दिस,
now from a battery the potential difference is 12 volt, current is 2 amperes for 30 minutes. Find the electric energy supplied by the battery. So we have to find the energy supplied by the battery. Okay, energy means W. So the formula is P into T for W. But wait, we don't know the power here, na? तो W का दूसरा फॉर्मूला क्या था? सर VIT. VIT ये वाला फॉर्मूला था where voltage, current and time is given. Okay. 30 minutes मतलब कितने सेकंड्स होते हैं? 1800 seconds. 30 minutes means 30 into 60. 1 minute is 60 seconds, so it will be 1800 seconds. Okay. So your voltage is 12, current is 2, and time is 1800. Multiply all these. 43200 joules. आगे आंसर. नेक्स्ट सेकेंड पार्ट दे आर आस्किंग मी टू फाइंड द पावर. ये फर्स्ट पार्ट हुआ हमारा. सेकेंड पार्ट है पावर फाइंड करना है. पावर इज V into I. ये फॉर्मूला है पावर का. सो वोल्टेज दिया हुआ है 12 volts and current is 2. So 24 and the unit of power is watt. Next, an electric heater is rated 1.5 kilowatt. 1.5 किलोवाट मतलब पावर. किलोवाट मतलब वो पावर का यूनिट है. वॉट. तो पावर इज हाउ मच? 1.5 किलोवाट एंड वोल्टेज इज 220 volts. ओके. अब ये किलोवाट है ना, तो इसको वॉट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा? 1.5 किलो. ओके 1.5 किलो है. सो इस k को अगर हटाना है तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1000 क्योंकि k का मतलब होता है 1000. ओके. किलोग्राम मींस 1000 ग्राम्स. ओके. सो k का मतलब होता है 1000. k is 1000 watt. So this will become 1500 watts. Power is 1500 watts. They want me to find the safe current which can flow through it. So P दिया है, V दिया है. We have to find the current. P is equal to V into I. ये फॉर्मूला है. So पावर की जगह पे लिख दो 1500, V की जगह पे 220 into I. Pay attention. So this 220 will come down. Decimal में आंसर आ रहा है. Yes, sir. You will get the current as 6.8 amperes. Yes, sir. क्वेश्चन क्या था? एन इलेक्ट्रिक हीटर. ये एक हीटर की स्पेसिफिकेशन दिया था 1.5 किलोवोल्ट्स और वोल्टेज. फर्स्ट पार्ट में वी फाइंड द सेफ करंट व्हिच कैन फ्लो थ्रू इट. मतलब कितना करंट सेफली फ्लो हो सकता है इसके अंदर से? 6.8 एम्पियर सेफली फ्लो हो सकता है.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन अ फ्यूज ऑफ करंट रेटिंग 5 एम्पियर बी यूज्ड इन इट? 5 एम्पियर का अगर मैं फ्यूज लगा दूं तो मैं क्या यूज कर सकता हूँ उसको? ओके, फ्यूज का मतलब क्या? फ्यूज क्या करता है? एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी को रोकता है। यस, थोड़ा थोड़ा राइट ही है। किसी को याद आ रहा है फ्यूज क्या होता है? नहीं। अगर कुछ ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गई तो बंद कर देता है। यस, इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट। करंट, ये जो भी चीज आप बोल रहे हो करंट के लिए है। मतलब फ्यूज क्या करता है? सी For example, if this is your appliance, okay, and this is the supply, okay, supply से current आपकी appliance को जा रहा है, fuse will be something here in middle, ओके। और फ्यूज का एक रेटिंग होता है। हर अप्लायंस में अलग अलग रेटिंग के फ्यूज होते हैं। रेटिंग का मतलब जैसे समझो ये वाला फ्यूज है 10 एम्पियर्स का, ओके। सो 10 एम्पियर्स तक जितना भी करंट फ्लो हो रहा है वो इसमें इजीली जाएगा विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। बट 10 एम्पियर से ज़्यादा का करंट अगर आया, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10.5 एम्पियर करंट आया, फॉर सम रीजन यहाँ से 10.5 एम्पियर करंट फ्लो होने लगा, ओके, तो ये फ्यूज जो है वो ब्रेक हो जाएगा, वो मेल्ट होता है एक्चुअली, बिकॉज फ्यूज इज मेड अप ऑफ सच अ वायर विच मेल्ट्स ऑन हीटिंग। तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होता है किसी भी वायर में से उतना उसकी हीट बढ़ जाती है, ओके, और वो मेल्ट हो जाता है। तो 10.5 करंट अगर यहाँ पे आएगा और वो इंस्टेंटली होता है एकदम, तो ये फ्यूज इमीडिएटली मेल्ट हो जाएगा, तो ये आपका सर्किट ब्रेक हो जाएगा और ये 10.5 आपके अप्लायंस तक पहुंच ही नहीं पाएगा। तो आपका अप्लायंस सेफ है, उसे ये जो ज़्यादा करंट है, बिकॉज अप्लायंस कैन नॉट टेक इतना सारा करंट, आपका अप्लायंस नहीं ले सकता, वो सिर्फ 10 एम्पियर तक ही ले सकता है, ओके। तो फ्यूज को हमें कौन से वैल्यू का रखना चाहिए? जो सेफ लिमिट है हमारे अप्लायंस की, उस लेवल पे हमें फ्यूज को रखना चाहिए, ओके। तो अभी यहाँ पे आपका सेफ लिमिट कितना था करंट का? 6.8 एम्पियर, ओके। 6.8 तक वो करंट आराम से ले सकता है। अगर आप 5 एम्पियर का फ्यूज लगा दोगे तो वो ऐसे ही बीच में मेल्ट हो जाएगा, बरोबर। तो आपको एटलीस्ट 6.8 का लगाना चाहिए, ओके। या आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगा सकते हो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा, लाइक 7 एम्पियर का आप कर सकते हो, ओके, बिकॉज थोड़ा सा 1.1 0.2 ऊपर नीचे थोड़ा चल जाता है, ओके। तो आप 7 एम्पियर का, तो ये 5 एम्पियर का नहीं चलेगा, बिकॉज ये सेफ लिमिट के भी अंदर है। सेफ लिमिट के थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए आपका फ्यूज रेटिंग। नेक्स्ट, बट सर 0.5 एम्पियर में भी फ्यूज मेल्ट हो जाता है। यस, इनफैक्ट 0.5 एम्पियर भी बहुत बड़ा है। हम जो भी फ़ोन यूज़ करते हैं, आपके फ़ोन का अगर आप चार्जिंग का ये देखोगे, रेटिंग्स देखोगे, तो इट विल बी 5 मिली एम्पियर्स। कितना करंट फ्लो होता है आपके फ़ोन में? 5 मिली एम्पियर। 5 मिली एम्पियर इज 0.005 एम्पियर्स। इतना सा करंट फ्लो होता है आपके फ़ोन में, ओके। जैसे ये एयर कंडीशनर है, तो मे भी यहाँ पे तो कितना लिख रहा है? यहाँ पे कितना लिख रहा है? 20 एम्पियर्स। तो ये जो स्विच है, ये स्पेशल स्विच है, बाकी स्विच जैसा नहीं है। यू कैन सी, देखो ये नॉर्मल है और ये अलग स्विच होता है। आपके घर पे भी जो एयर कंडीशनर का स्विच होता है वो जनरली थोड़ा सा बड़ा होता है, ओके, बिकॉज इट कैन टेक करंट अप टू 20 एम्पियर्स। बाकी जो स्विचेस है वो इतना करंट नहीं ले सकते, समझ रहे? तो ये 20 एम्पियर्स है बस। देखो एयर कंडीशनर भी सिर्फ 20 एम्पियर्स यूज करता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो एम्पियर्स में जनरली करंट क्या होता है? वो मिली एम्पियर्स में यूज होता है। आपके घर के सारे अप्लायंसेस, आपके मोबाइल फोन्स, आपके लैपटॉप वगैरह, वो सब 1 एम्पियर के भी नीचे काम करते हैं, ओके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हमने इसके दोनों पार्ट्स कर लिए, कवर हो गए दोनों भी। कॉपी करना है तो कर लो, नहीं तो नेक्स्ट टाइम ऑलरेडी कर दिया। Third, an electric geyser of power 2500 watt. So power क्या है? 2500 watt. Time it is used for 1 hour 30 minutes.
टाइम इज 1 hour 30 minutes. फाइंड द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर्स. तो उन्होंने बोला है किलोवाट आवर्स में फाइंड करो. ओके, किलोवाट आवर्स में. तो सबसे पहले ये वॉट में है. ओके, तो 2500 वॉट मतलब कितना किलोवाट होगा? 2.5 किलोवाट होगा. ओके, 2500 वॉट मींस 2.5 किलोवाट. ओके, अब ये 1 hour 30 minutes जो है ना, 1 hour 30 minutes, इसे हमें आवर्स में कन्वर्ट करना है. ये 1 hour तो प्रॉपर है. 30 minutes मतलब कितना होता है? 1.5. हाफ आवर. 30 minutes मतलब हाफ आवर. So this 1 hour 30 minutes is nothing but 1.5 hours. ओके, या इसे अगर प्रॉपर फ्रैक्शन में करें तो 3/2 hours. ओके, बिकॉज हमें सम्स में इसको यूज करना है. ठीक है. Now we have to find the electric energy consumed. Means W is equal to P into T. So power is 2.5 into time is 3/2. Do this math. करो. You have the answers with you in the textbook. Please check there. अलग आंसर आ रहा है. सही तो आया आपको? क्या है आपका आंसर? 3.7 तो डिवाइड कर वही है. आंसर सही है. अच्छा, मेथड अलग है. हाँ, यस यस, वो चलता है. अच्छा, उन्होंने टाइम को 1.5 लिया था, हमने 3/2 आवर्स लिया था. डन. गॉट द आंसर. Yes. 3.75 kilowatt hour. This is the energy consumed. This was the third solved example. Okay, Next. fourth. An electric bulb of 100 watt. So bulb का wattage कितना है? 100. An electric iron. अच्छा, ये bulb है. This is a bulb. ठीक है. फिर एक iron है 750 watt. So iron 750 watt. And a television 100 watt. So a television ये भी 100 watt है. Are used for 3 hours per day. Find the energy consumed per day. मतलब टाइम कितना है? 3 hours. ओके, तीनों को 3 आवर्स के लिए यूज किया है. ठीक है, तीनों को 3 आवर्स के लिए यूज किया है. मतलब मैं इन तीनों को ऐड कर देता हूँ तो मुझे पता चलेगा टोटल कितना यूज हो रहा है. ओके, सो द टोटल पावर will be 100 plus 750 plus 100, that is 950 watt यूज हो रहा है टोटल पावर. और 3 आवर्स के लिए यूज हो रहा है. 950 watt is been used and it is used for 3 hours. so this is the power and this is the time. So what will be the energy? Means W P into T. So 950 into 3, that is 2850 watt. Yes, sir. पहले हमें टाइम दिया हुआ था, पावर हमने किया. पावर और टाइम से वी फाउंड द एनर्जी. दिस W is nothing but the energy. W is nothing but the energy. So W is 950 into 3, that is 2850 watt. अब ये sorry, this is hours ना, 3 hours. So what hours? Write the unit as because we are taking the time in hours. So इसे watt hours लिखो. अब इसे kilowatt hours में convert कर सकते हैं.
तो छोटा हो जाएगा वैल्यू, मीन्स डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, तो 3 पॉइंट शिफ्ट कर लो तो दिस विल बिकम 2.85 किलोवाट आवर. दिस इज द एनर्जी consumed. W means the energy consumed. The last solved example. An electric appliance of power 1.5 kilowatt, already kilowatt में दिया हुआ है, is used for 4 hours each day. 4 hours. So what will be the energy consumed? Energy is P into T. W is P into T. That is 1.5 into 4. That is 6. Okay. Power kilowatt में है, kilowatt. और टाइम आवर्स में, सो किलोवाट आवर्स. एनर्जी कंज्यूम्ड इज 6 किलोवाट आवर्स. ये जो उन्होंने 4 आवर्स बोला था, ये ईच डे बोला था, एक दिन में 4 आवर्स यूज करते हैं. ओके एनर्जी कंज्यूम, ठीक है, इन 4 आवर्स इज 6 किलोवाट. मतलब एक दिन में इतना एनर्जी कंज्यूम होता है. सेकेंड पार्ट दे वांट मी टू फाइंड द इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 डेज. एनर्जी कंज्यूम्ड इन 60 डेज. एक दिन में 6 किलोवाट आवर्स होता है, तो 60 डेज में कितना होगा? 360 किलोवाट आवर्स. करेक्ट. And see the cost of electrical energy consumed in 60 days at a rate of 6.25 per kilowatt hour. मतलब रेट क्या है? 6.25 पर किलोवाट आवर. 1 किलोवाट आवर का प्राइस है ₹6.25. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ एनर्जी for 60 days. एक किलोवाट आवर का चार्ज है 6.25 रुपीज. इसने कितना किलोवाट आवर यूज किया? 360 किलोवाट आवर यूज किया. So 6.25 into 360. This will give you 2250 rupees. Exercise 4 sums. Simple sum exercise के. Once we are done with the solved examples, तो हमें वो बहुत easy लगेगा, फटाफट हो जाएंगे. The first question,
An electric appliance is rated 60 watt 150 volt. मतलब अगर आपने एक अप्लायंस खरीदा उसके ऊपर लिखा हुआ है 60 watt 150 volts, तो what is the meaning of this? It means that right now Power is 6 नहीं, it means when the appliance is connected to 150 volts, it means that when the appliance is connected to 150 volts, it consumes 60 watt in 1 second. तीनों मिल गया और यार 1 सेकेंड मत लिखो तो भी चलेगा. 60 watts means in the bracket you can write 60 joules in 1 second. ऐसा for extra explanation. मतलब मीनिंग समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि अगर मैंने जो अप्लायंस है उस पर अगर लिखा है, देखो हमारे घर पे जितने भी अप्लायंस आते हैं ना सब अप्लायंस पे 220 वोल्ट्स ही लिखा हुआ होगा, बिकॉज हमारे जो यहाँ पे हमारे जो सॉकेट है जो हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी आती है वो 220 वोल्ट्स की ही आती है. ओके, तो सारे अप्लायंस पे 220 वोल्ट्स लिखा होगा बिकॉज दे आर गोइंग टू कनेक्टेड टू द सेम स्विच. हम कोई अलग स्विच पे कनेक्ट नहीं करते, तो 220 वोल्ट्स ही लिखा हुआ आता है. सिर्फ ये पावर चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द, अगर हेवी अप्लायंस होगा तो 120 वॉट्स, 500 वॉट्स, 600 वॉट्स होगा. छोटा अप्लायंस होगा तो 5 वॉट, 10 वॉट, 15 वॉट्स वैसा. सेकेंड पार्ट दे वांट मी टू फाइंड द करंट. सो हमें फॉर्मूला पता है P is V into I. P is V into I. तो इसमें पुट करो ये वैल्यू 60 equals 150 into I. So 60 upon 150 is I. Current is measured in amperes. Done? Try to solve the second question on your own. An electric iron of power 1.5 kilowatt is used for 30 minutes. Calculate the electric energy consumed in kilowatt hour. Minutes means how many seconds? 1800. 1800. And 30 minutes means how many hours? 0.5. 1.3 1.3. 30 minutes. 30 minutes. आधा घंटा. ये मैंने दोनों में क्यों लिखा है? मैंने सेकंड्स में भी लिखा है और आवर्स में भी लिखा है बिकॉज इन द क्वेश्चन दे आर एक्सपेक्टिंग टू आंसर्स. उन्होंने बोला है ए पार्ट में किलोवाट आवर्स में और बी पार्ट में जूल्स में आंसर चाहिए. दोनों आंसर डिमांड कर रहे हैं. तो जब किलोवाट आवर्स में करेंगे तो आई टेक द टाइम इन आवर्स. सो फॉर्मूला क्या है? W is P into T. पावर है 1.5 किलोवाट and time is 0.5 hours. 0.75. Hours. So answer will be 0.75 kilowatt hours.
टाइम को आवर्स में लिया है, बिकॉज आई वांट द यूनिट टू बी किलोवाट आवर्स। और बी पार्ट में क्या बोला है, इन जूल्स। इन जूल्स मीन्स फॉर्मूला तो सेम ही है, बस टाइम को इस बार सेकेंड्स में लेना है। और ये जो पावर है इट इज इन किलोवाट, तो किलोवाट को वाट में कैसे कहते हैं, इनटू 1000 करते हैं। और टाइम इज 1800 सेकेंड्स। इन सबको मल्टीप्लाई करना है। So 15 into 18 will give you 270. $27 के आगे 5 zeros आएंगे। 27 lakhs. Joules. So if you shift the decimal, कितना है देखो, मैं अगर 2.7 कर दूँ इसको, तो पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 into 10 raised to 6 joules। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ, फिर समझना इजी हो जाता है इसमें। 27 into 10 raised to 5 लिख सकते हैं। नहीं, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि फर्स्ट एक ही नंबर के बाद पॉइंट आना चाहिए, उसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। आपने 27 ले तो 2 नंबर्स हो गए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं रहेगा। थर्ड क्वेश्चन भी करो मुझसे, बहुत ही सिंपल है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, गिवन डेटा है उसको अच्छे से लिखना है, बाकी मल्टीप्लिकेशन वगैरह पार्ट तो इजी होता है। ट्वेल्व किलोवाट आवर्स जो दिया है वो क्या दिया है, श्योर? पावर तो किलोवाट में होता है या वाट में होता है? किलोवाट आवर्स में क्या होता है? पावर टाइम्स पावर इनटू टाइम। पावर इनटू टाइम क्या होता है? व्हाट इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम व्हाट होता है? हाँ, W क्या होता है? वर्क या एनर्जी कंज्यूम। तो उन्होंने एनर्जी ऑलरेडी दे दिया है क्वेश्चन में। किलोवाट आवर जो यूनिट है वो एनर्जी का यूनिट है, एनर्जी कंज्यूम। एनर्जी कंज्यूम जिसको हम W से इंडिकेट करते हैं वो उन्होंने ऑलरेडी दे दिया है, 12 किलोवाट आवर्स। The rate of electricity is 6.25। तो एवरी डे 12 किलोवाट आवर्स यूज होता है, ठीक है। 1 किलोवाट आवर का प्राइस है 6.25 और 30 डेज में कितना बिल आएगा वो तो पूछ रहे हैं 30 डेज में, ठीक है। तो हम कॉस्ट कैसे फाइंड करेंगे? रेट इनटू एनर्जी कंज्यूम्ड इनटू नंबर ऑफ डेज। सही है ना? एक दिन में 12 किलोवाट आवर्स यूज कर रहे हैं, तो 30 डेज में कितना करेंगे? 12 इंटू 30 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। n मतलब नंबर ऑफ डेज। रुपीज
2250 रुपीज साइन डालना मत भूलना। डन। In a premise, 5 bulbs each of 100 watt. So bulbs 5 bulbs है और एक बल्ब 100 watt का है। 2 fans 60 watt. So fans है 2 और एक फैन है 60 watt का। 2 ACs each of 1.5 kilowatt. So ACs जो है 2 ACs है 1.5 kilowatt are used for 5 hours per day. So time सबका सेम है 5 hours. Okay. वन 1.5 किलोवाट का मतलब कितना वाट हुआ? 1500 वाट हुआ वॉट में, बिकॉज ये दोनों भी वॉट्स में दिए हैं तो इसको भी वॉट में करना जरूरी है, तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा। ओके, सारे सेम यूनिट में होना चाहिए टू ऐड इट। तो डेली कितना पावर कंज्यूम होगा? द टोटल पावर कंज्यूम पर डे 3600 कैसे मिला? अच्छा, सबको मल्टीप्लाई कर दिया। पावर कंज्यूम पर डे, तो बल्ब कितना पावर कंज्यूम करेगा पर डे? 100 का एक बल्ब है इंटू 5 बल्ब है, तो 100 इंटू 5। एक फैन 60 है और ऐसे 2 फैन है, और एक एसी 1500 है और ऐसे 2 एसी है। ओके, सो दिस इज 500 प्लस 120 प्लस 3000, 3620 watt power consumed per day. So power consumed in 30 days क्या होगा? In 30 days, तो जो ये वैल्यू है इसको हम 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। 108600 ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर। करने का मल्टीप्लिकेशन एक नहीं करना। वॉट, ये वॉट में है, अगर इसको छोटा करना है किलोवाट में करना है तो 3 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा पीछे से। सो 1.108.6 किलोवाट। किलोवाट आर मत लिख देना, किलोवाट, दिस इज पावर। सी पार्ट में क्या पूछा है? टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 30 डेज मींस पावर इनटू टाइम। तो पावर कितना मिला था? 108.6 और टाइम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 5 hours। So multiply this, 8 5 40, 40 plus 3 40।
543 kilowatt hour. एंड कॉस्ट भी आप निकाल ही सकते हो कि आपको आता है कि क्या करना है, जो किलोवाट आवर का आंसर है उसको रेट से मल्टीप्लाई करना है। सर हर एक क्वेश्चन में एक ही रेट है। क्या रहता है? क्वेश्चन में एक ही रेट एक ही रेट है। हाँ एक्चुअली में वही रेट रहता है। नहीं, स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी डिफर करता है, बहुत डिफर करता है। इनफैक्ट अब अभी जो हमारे यहाँ पे रेट है, आपके घर पे कौन सी इलेक्ट्रिसिटी बेस्ट की ही आता होगा सबके घर पे? बेस्ट कंपनी देखा है? लाइट बिल कभी ब्लू कलर का लाइट बिल वाइट और ब्लू कलर का होता है, तो बेस्ट कंपनी का आता है जनरली हमारे घर पे। कुछ लोगों के घर पे आएगा टाटा या रिलायंस का भी आता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो कुछ है वहाँ पे। तो जिसके घर पे बेस्ट कंपनी का आता है उनका रेट होता है 4.25 समथिंग। उस रेट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी आउट होती है। बट यही अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में कोई टैक्स नहीं लगता। लगता है जीएसटी लगता है, जीएसटी। और फिर अगर आप, जिसे मैंने रिसेंटली देखा था जब राजस्थान गया था, तो वहाँ पे उदयपुर में वहाँ पे 8 रुपीज़ लगते थे पर किलोवाट आवर। हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी चीप है कंपेयर टू बाकी स्टेट्स में, बिकॉज महाराष्ट्र में बहुत इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। महाराष्ट्र में डैम्स वगैरह है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जैसे राजस्थान में ज़्यादा डैम्स नहीं है बिकॉज वहाँ पे रिवर्स ही कम है, तो इसीलिए वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी उनको दूसरे स्टेट से लेनी पड़ती है, so the cost increases. That's it. 6.25 into 543 3.75 rupees. That's it for today. So I think we have completed the numericals of all the chapters now. Okay.